Okay, so let us start with the next question. And by the way, this is going to be the last lecture of CET. So we will be solving some CET level questions which were asked in previous CET exam, MST CET I mean. पहला question, a charge Q moves with velocity V through electric field E as well as magnetic field B, then the force acting on it is given by. आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर में स्टार्टिंग के लेक्चर में ही वी हैव सीन लॉरेंट्ज फोर्स. तो इफ यू रिमेंबर लॉरेंट्ज फोर्स में क्या होता है, यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस से दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है. देन यू हैव मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस टेक मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और इन दोनों फील्ड्स में देयर इज अ पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल which is moving. So there is a charge particle which is moving with velocity v bar in both electric field and magnetic field. तो दोनों ही फोर्स उस पर एक्ट होते हैं. सिंपल क्वेश्चन है ये. तो टोटल फोर्स इज फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. आपको याद होना चाहिए फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज q e bar प्लस फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड इज q V bar cross V bar. And if you remember, well, by the way, option तो आ ही गया हमारा, but you can also take out Q common, तो E bar plus V bar cross V bar. This is Lorentz force and option number C. So question was very simple. It was asked in 2020 CET exam. Simple question था. Total force acting on a charge moving in electric and magnetic field is given by Q E bar plus Q V bar cross B bar. Next question. An electron moves in a circular orbit with uniform speed v. So there is electron which is moving in circular orbit. Let us take, this is a nucleus of the atom. You have an electron moving in circular orbit with speed v. It produces a magnetic field at the center of the circle. The radius of the circle is, so you know this moving electron, it will act as if it is a current carrying loop. तो आपको याद होना चाहिए what is the magnetic field due to current at the center of the loop. B equal to mu 0 by 4 pi, आगे 2 पाई आना चाहिए यहाँ पे, 2 पाई आई बाय आर. जिनको याद नहीं है आपको ये याद होना चाहिए कि यहाँ पे आप लिखते हो थीटा, और कंप्लीट लूप के लिए थीटा की वैल्यू आती है 2 पाई. सो एनी करंट कैरिंग लूप हैज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर गिवन बाय mu 0 by 4 pi 2 pi I by r. This is what you need to know. So do you remember this formula? Magnetic field at the center of a current carrying loop. यहाँ पे ऊपर 2 पाई आता है. 2 पाई कैसे आता है? क्योंकि एंगल इज 2 पाई. तो यू शुड रिमेंबर दिस. जिनको याद अभी भी याद नहीं आ रहा तो याद दिला देता हूँ. फॉरगेट अबाउट द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट यू शुड रिमेंबर अगर आपके पास एक वायर है तो इन दिस केस if the wire is carrying current I, magnetic field is mu 0 by 4 pi I upon r into theta. अगर हाफ वायर होगी तो थीटा की वैल्यू डालोगे पाई. कंप्लीट लूप होगा तो 2 पाई, 1/4 होगा तो पाई बाय 2. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू फाइंड आउट. तो अब यहाँ पे हमारे पास इतना ही डिफरेंस है कि यू हैव अ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज रिवॉल्विंग. नाउ यू शुड नो कि I कैसे फाइंड करोगे. Do you remember by definition what is definition of current? What is definition of current? ये सब हम कर चुके हैं स्टेट बोर्ड थ्योरी में. I equal to charge per unit time. याद है ये चार्ज पर यूनिट टाइम. चार्ज कितना है E, क्योंकि कौन सा पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन. T is time period. And if you remember टाइम पीरियड के लिए भी इक्वेशन बनाया था आपने. टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. Distance covered by electron in one revolution is 2 pi r. 2 pi r by v. Therefore current आपको मिल जाएगा I you will get as E upon 2 pi r upon v and v will go up. अब इक्वेशन नंबर 1 में ये इक्वेशन नंबर 2 सब्स्टिट्यूट करोगे. So from 1 and 2 you will have B equal to
म्यू 0 बाय 4 पाई 2 पाई अपॉन आर और आई की जगह पे आ जाएगा ई बी अपॉन 2 पाई आर। 2 पाई कैंसल, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बी इक्वल टू, you will get b equal to eb upon r square, mu 0 of course you will have here mu 0 by 4 pi eb by r square, therefore r square equal to mu 0 by 4 pi eb by b, therefore r equal to, taking square root on both sides, mu 0 by 4 pi eb by b raised to half है क्या ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। आपको पूछा है अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है which is revolving in circular orbit with speed v, so what is the magnetic field produced is b, what is the radius of the orbit, मतलब radius of the orbit r in terms of magnetic field and speed। तो सबसे पहले you should remember magnetic field due to a current carrying loop at the center is mu 0 by 4 pi 2 pi I by R। अब I क्या होता है? Q by T। What is Q? E by T is time period। What is time period? Distance upon speed। Distance in one revolution is 2 pi R upon V। तो ये T यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो I मिल जाएगा। ये I की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट B in terms of R square। तो R square is mu 0 by 4 pi EV by B, तो R is mu 0 by 4 pi EV by B raised to half। Next question, two parallel conductors carrying unequal currents in the same direction। unequal currents यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि directions are different, here it means एक में 5 एम्पियर, दूसरे में 8 एम्पियर, एक में 4 एम्पियर, दूसरे में 3 एम्पियर। So magnitude of current is not same but direction is the same। मैंने कल ही बताया था, क्या बताया था? when you have currents in the same direction they repel each other, like charges attract each other, like currents मतलब same direction currents repel each other। so यहाँ पे आपके पास क्या है? unequal currents in the same direction, क्या होगा? attract होगा कि repel होगा? The same problem was with another batch yesterday। I'll just write it down। electrostatics और यहाँ पे ये है मैग्नेटोस्टैटिक्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट्स को आप मैग्नेटोस्टैटिक्स भी बोलते हो, तो ये पता होना चाहिए। नंबर 1, अगर आपके पास दोनों चार्जेस इक्वल है मतलब प्लस एंड प्लस, क्या होता है? रिपल्शन। अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है तो क्या होता है? अट्रैक्शन। दोनों नेगेटिव हो तो रिपल्शन, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो अट्रैक्शन। यहाँ पे याद रखना, जब दोनों करंट, अब करंट को प्लस माइनस तो बोल नहीं सकते, आप बोल सकते हो दोनों करंट सेम डायरेक्शन में अगर हो, इसको बोलते हैं लाइक चार्जेस, इसको बोलते हैं लाइक करंट्स। तो जब सेम डायरेक्शन में करंट्स हो, यहाँ पे चार्जेस सेम होने के बाद दे रिपेल, हियर चार्जेस अट्रैक्ट। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। और अगर एक करंट और दूसरा करंट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन दे रिपेल ईच अदर। तो अब मुझे बताओ सेम डायरेक्शन के करंट अट्रैक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी, डन, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, torque acting on a rectangular coil carrying current I situated parallel to magnetic field of induction B having number of turns N and area A is given by। Do you remember हमने theory classes में we have seen when you have electromagnet, ये north pole होगा, ये south pole होगा, when you have a coil inside this एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आपके पास एक कॉइल था और अगर आपको याद होगा
तो टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस कॉइल का हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। वेरी गुड, गुड। तो नाउ यू सी यहाँ पे ऑलरेडी दे आर गिविंग इन टर्म्स ऑफ ए बी एन आई, यहाँ पे भी एन आई ए बी, यहाँ पे भी एन बी ए अपॉन आई बी ए बाई एन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू कैन सी टॉर्क में कुछ भी एक भी पैरामीटर डिनोमिनेटर में नहीं है, मतलब डेफिनेटली ये और ये तो आने नहीं वाले, सिंपल। अब हाँ सी या डी, इफ यू रिमेंबर वेक्टर होता है, वेरी गुड। तो विदाउट सॉल्विंग यू कैन सी टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट गिव्स यू अ स्केलर, तो ये आ नहीं सकता। बट इन एनी केस यू कैन आल्सो मेक दिस अ वेक्टर, तो आप लिख सकते हो टॉर्क इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा इज ए बार क्रॉस बी बार, ऑप्शन नंबर सी। 2019 सीईटी, सीईटी के क्वेश्चन बहुत इजी है। Next question. A circular coil of wire consisting of 100 turns, each of radius 9 centimeter, carries a current of 0.4 ampere. The magnitude of the magnetic field at the center of the coil is. आपके पास एक coil है, circular coil है, which is having 100 turns. Do not treat this as solenoid, क्योंकि solenoid में बोला होता है कि solenoid है, ऐसा बोला है क्या? नहीं, क्या बोला है? सर्कुलर कॉइल। तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे, मतलब एट द एक्सिस ओवर हियर, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला? म्यू जीरो अपॉन, हाँ अपॉन 4 पाई ऊपर 2 पाई मतलब 2 आई बाय आर इंटू एन, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए हैं। देन यू आर बीइंग आस्क्ड व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सिंपल, म्यू जीरो की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, डायरेक्टली दिया है आपको यहाँ पे, इन टर्म्स नॉट इन टर्म्स ऑफ पाई, डायरेक्टली दिया है 12.56 into 10 power minus 7 upon 2. How much is the current? 0.4. 0.4 मतलब 4 into 10 power minus 1. What is the radius? 9 centimeter. 9 into 10 power minus 2. And then number of turns is 100 मतलब 10 power 2. तो उसको सिर्फ सॉल्व करना है, 1 जा and 2 जा। 12.5 into 2 is 25. 12.5 into 2 is 25. 25 by 9, 2 point something, क्योंकि 27 by 9 होता तो फिर 3 आता, तो अभी अनफॉर्चुनेटली एवरीथिंग इज 2 point something। बट फिर पावर्स को एडजस्ट करके देखेंगे हम लोग, तो ऑफ कोर्स ये 25 by 9 है, रफली 25.12 by 9 है, एंड देन 10 पावर -7 -8 +2 -6 और ये ऊपर आके +2 होगा -4, तो -4, तो -4 आना चाहिए, है क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो 2.79 into 10 power -4 टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the magnitude of magnetic induction at a point on the axis at a large distance r from the center of a circular coil of n turns and area a carrying current I is given by। तो हमारे पास एक कॉइल है जिसका रेडियस आपको बताया है, रेडियस कुछ नहीं बोला, ठीक है, नो इश्यूज, वी विल टेक रेडियस एज a and then they are telling you that the point on the axis is far away। मतलब अगर ये पॉइंट जिसका डिस्टेंस हमको बताया है r, है ना, the magnitude of the magnetic induction at a point on the axis at a large distance r, तो r is very very greater than a, ऐसा बोला है आपको। गुड, सो ठीक है, other things apart, do you remember the formula that we derived? B on the axis we have derived as μ0 by 4 pi, आगे 2i a square, 2i radius square upon x square plus a square raised to
3/2, और अगर n नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो मल्टीप्लाइड बाय n। ओनली डिफरेंस इज हमने r की जगह पे x यूज किया था एंड दे आर यूजिंग r। हमने r इसको बोला था, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड r। तो क्वेश्चन में सिर्फ नोटेशन ही चेंज किया है, दैट्स इट। तो x की जगह पे यू विल हैव टू राइट डाउन r हियर, दैट्स इट, इतना है। अब और क्या बोला है, वेरी लार्ज डिस्टेंस। जब लार्ज डिस्टेंस होता है तो व्हाट यू डू इज r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। इसका मतलब r स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a स्क्वायर। इसका मतलब r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज रफली इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ पे r स्क्वायर डालोगे, ऊपर नहीं, ओनली हियर। सो यू विल बी गेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस इक्वल टू, सो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस आपको मिल जाएगा, सिंपल सा इक्वेशन है। तो b एक्सिस is equal to mu 0 by 4 pi, mu 0 by 4 pi, and then 2ia square, 2ia square upon r square plus a square raised to 3/2, मतलब r square raised to 3/2 cancel and cancel। तो मैंने आपको बताया भी था एक बार that or multiplied by n। I have told you once if you remember कि नीचे r क्यूब सिर्फ इस स्पेशल केस में आता है, x क्यूब हमारे केस में, और यहाँ पे x यहाँ पे उन्होंने r यूज किया है, तो दैट थिंग। नाउ इनका जो आंसर है इट इज इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया ऑफ द लूप। हमारा आंसर जो है इट इज इन टर्म्स ऑफ रेडियस स्क्वायर। तो डू यू नो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे a। तो हियर फ्रॉम हियर यू विल गेट a स्क्वायर इक्वल टू a बाय पाई। तो आपको सिर्फ रेडियस स्क्वायर की जगह पे a बाय पाई डालना है। तो म्यू 0 बाय 4 पाई 2ni कैपिटल A बाय पाई और r क्यूब। ओके, क्लियर, सिंपल। देन अब देखो ऑप्शन में कहीं मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, क्योंकि पाई यहाँ पे भी पाई, गुड। एंड म्यू 0 2ni अपॉन पाई r क्यूब, कम से कम इतना है क्या, चेक चेक चेक, 2ni म्यू 0 4 पाई r क्यूब। मतलब यू हैव टू टोल्ड मी समथिंग रॉन्ग। मैंने बताया था आपको सर्कुलर लूप हो तो नीचे पाई नहीं आता है, याद है क्या? हाँ, इधर पाई लिख रहे हो तो ऊपर भी पाई लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे देयर इज नो पाई, यू शुड रिमेंबर दिस। so there is no pi, okay, then here there is no pi, here there is no pi, and here of course ये जो a स्क्वायर की जगह पे हमने a बाय पाई लिखा है उसका पाई यहाँ पे आ गया, गुड। तो डू यू सी एनी ऑप्शन हियर नाउ, ऑप्शन नंबर बी। तो मैं वापस बता देता हूं आपको एक बार, सिंपल सा क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सिंपल। आपको सिर्फ इतना पूछा है व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस एट अ लार्ज डिस्टेंस, दैट्स इट। तो यू मस्ट रिमेंबर b axis is mu 0 by 4 2y a square upon r square plus a square raised to 3/2 into n। यहाँ पे r is distance of that point along the axis। हमने जब इक्वेशन डिराइव किया था तो हमने r की जगह पे x लिखा था, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अब if r is very very greater than a, r square is very very greater than a square, मतलब r square plus a square equal to r square। तो सब्स्टिट्यूट करो एंड सॉल्व करो। तो म्यू 0 by 4 2ni a square by r cube, but a square मतलब रेडियस स्क्वायर, बट एरिया ऑफ द लूप इज पाई इनटू a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज a by पाई, तो a स्क्वायर की जगह पे a by पाई सब्स्टिट्यूट करो एंड यू विल गेट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 very long insulated copper wires are bound together to form a cable। So you have 6 very long insulated, what is the meaning of insulation by the way? हाँ, they are covered with a non-conducting material, क्योंकि 6 के 6 बार टच हो जाके एक ही बन जाएगा फिर। So you should know insulation मतलब they are basically covered with, by the way you see wires here, ये जो wires है सबके सब insulated है because all of them are covered with some kind of non-conducting material, so that is insulation।
So you have 6 very long wires. So I am keeping some gap in between them because I want to show current. So you have more or less like this 6 very long insulated wires. Okay, they are bound together to form a cable. तो सबको साथ मिला के केबल बना दिया. The current carried by the wires are, ये वायर नंबर 1 है, इसमें करंट है I1 which is equal to 10 एम्पियर. तो पहले वायर में करंट है 10 एम्पियर, दूसरे वायर में करंट है I2 is 13 एम्पियर विद अ नेगेटिव साइन. तो -13 एम्पियर का करंट है सेकेंड वायर में. तो सेकेंड वायर कंटेन्स -13 एम्पियर ऑफ करंट. देन यू हैव थर्ड वायर विच कंटेन्स, थर्ड वायर का करंट कितना, थर्ड वायर इज +10 अगेन. तो थर्ड वायर इज +10 अगेन, 10 एम्पियर करंट. And then fourth wire is +7, so I4 is +7 ampere. Fifth wire is -12, so I5 is -12 ampere, and then I6 is +18 ampere. तो इतना आपको बताया है. The magnetic induction at a perpendicular distance of 10 centimeter from the cable is, यहाँ पे एक पॉइंट है P which is at a distance of 10 सेंटीमीटर. अभी 10 सेंटीमीटर कहां से मेजर करोगे, सेंटर ऑफ दिस वायर्स. तो ये जो केबल बनेगा उसके सेंटर से डिस्टेंस मेजर होगा, बिकॉज नाउ ऑल दिस 6 वायर्स विल बी बिहेविंग एज अ सिंगल वायर. सो नाउ दे आर गिविंग यू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एज 10 सेंटीमीटर, मतलब ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर. एंड दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन. तो कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिड यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन? नो, हाफ ऑफ यू नो. कुछ नहीं है, 6 वायर है, 6 वायर को कंबाइन करके एक सिंगल वायर बनाया है, 6 वायर का करंट दिया है, आपको बोला है कंबाइन करने के बाद 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो डू यू नो फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस A? You should know it is mu0 by 4 pi 2I by A. R मतलब A, ठीक है, I am using A here, A distance. तो सिर्फ इतना ही चेंज है यहाँ पे, I की जगह पे I net. I net is total current. Total current is just addition. तो total current in this case is just addition. तो सबको सिर्फ ऐड करते जाओ तो you will get net current. तो रिजल्टेंट करंट कितना, तो जस्ट एडिशन. तो जस्ट यू हैव टू ऐड ऑल दिस अप. तो I net is equal to I1 plus I2 plus I3 plus I4 plus I5 plus I6. सिंपल. 10 -13 मतलब -3, -3 plus 10 is 7, 7 और 7 14, 14 में से 12 गए 2, उसमें 18 ऐड किया 20, तो I net is 20 एम्पियर. तो mu0 by 4 pi, ये 10 पावर -7 होता है, आपको पता है. ये 2 है, ये 20 है, और आपके पास A 10 सेंटीमीटर था. 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 पावर -2 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 10 into 10 पावर -2 आएगा. ओके, सो दिस इज नथिंग बट 2 into 2 4, इसका एक 0 यहाँ पे, 10 पावर -6. ओके, वैसे तो क्वेश्चन हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर A. फिर भी कैलकुलेशन कर लो. सो यू हैव 4 into 10 पावर -6 ऊपर, 4 into 10 पावर -6 ऊपर, और बेटर और इजी कर लेते हैं, इसको 40 रख देते हैं, नो इश्यूज. तो दिस इज 40, ऊपर 10 पावर -7, नीचे 10 पावर -1, ऊपर 10 पावर -7, नीचे 10 पावर -1, मतलब 10 पावर -6 टेस्ला. तो 40 माइक्रो टेस्ला हो गया ऑप्शन नंबर A. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है, बट इज showing up in CET also, so I'll repeat this question. A current carrying circular coil, current is I, has radius R and magnetic field at the center is B.
तो magnetic field at the center value is B. At what distance from the center along the axis of the same coil the magnetic field will be B/8. तो एक्सिस पे जो फील्ड है वो B/8 मतलब सेंटर वैल्यू का बाय 8 होना चाहिए, ऐसा आपको पूछा है. So if you remember B center by B axis, यहाँ पे ये आ गया 8. तो if you remember हमने ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया था, बट नाउ दैट टाइम हमने ये यूज किया था B सेंटर बाय B एक्सिस इज इक्वल टू, अगर याद होगा तो याद है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2 अपॉन एक्स का क्यूब. या तो आर ऊपर बोलो तो नीचे भी आर, ऊपर एक्स तो नीचे भी एक्स, तो आपके ऊपर है वो. ओके गुड. बट देन यस्टरडे इन द लास्ट सेशन मैंने आपको इसका एक और फॉर्मूला बना के दिया विच इज सिंपलर वन. 1 प्लस एक्स अपॉन ए स्क्वायर रेज टू 3/2. कभी क्वेश्चन रिपीट ही हो रहा है तो हम इस फॉर्मूला से भी देख लेते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं. एंड इफ यू रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर नाउ, ये था उसका आंसर √3r. यही था आंसर, ये याद होना चाहिए. एक बार क्वेश्चन सॉल्व किया, यू शुड रिमेंबर आंसर √3r आता है वो. दिस इज 8. दिस इज 1 plus x square by a square raised to 3/2. Luckily 8 is 2 का क्यूब, तो ये 2 का क्यूब है, तो हमको यहाँ पे क्यूब रूट लेना पड़ेगा. इजी, इफ यू टेक क्यूब रूट तो यहाँ का पावर 3 और वहां का पावर 3 विल डिसअपियर, तो ये 2 आ जाएगा. ये आ जाएगा 1 plus x square by a square raised to हाफ. हमने क्यूब रूट ले लिया. गुड, अच्छा है, दोनों साइड पे क्यूब था. अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो दोनों साइड पे क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट है तो व्हाट विल यू डू, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. गुड, तो ये आ जाएगा 4 इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. वेरी गुड. देन आपको क्या पूछा है, यू आर बीइंग आस्क्ड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स in terms of radius, और a हम radius के लिए यूज करते हैं, तो you can use this. This is 4 minus 1 3 equal to x square by a square. तो x square equal to 3 times of a square, तो x equal to √3 times of a. a मतलब radius है हमारे लिए, तो it is √3r. ऑप्शन नंबर B. नेक्स्ट क्वेश्चन. A current loop in a magnetic field experiences a torque whether the field is uniform or non-uniform in all orientation, can be in equilibrium in one orientation, can be in equilibrium in two orientation, both the equilibrium states are unstable, can be in equilibrium in two orientation, one state while the other is unstable, one state is stable and other is unstable. Okay, तो अब ऐसा है, what they're asking you is you have a current loop in a magnetic field. तो आपके पास पहले तो एक magnetic field बताना है, तो you have a magnetic field here, you have a magnetic field. और इस magnetic field में, अब magnetic field यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, because they are talking about uniform and non-uniform field. What do you understand by uniform magnetic field and non-uniform magnetic field? Same direction, magnitude. Okay, if you measure the field value at every point it is same. For example, अगर मैं A point पे field value find कर रहा हूँ, B पे कर रहा हूँ, C पे कर रहा हूँ या D पे कर रहा हूँ, हर जगह पे मुझे सेम वैल्यू मिल रही है, 5 टेस्ला 5 टेस्ला 5 टेस्ला एंड 5 टेस्ला, और डायरेक्शन भी सेम है. देन सच अ फील्ड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ऐसा हो सकता है कि यू आर मेजरिंग एट ऑल दिस पॉइंट, वैल्यू इज सेम बट डायरेक्शंस आर डिफरेंट, ऐसा भी हो सकता है. तो सच फील्ड्स आर कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स. तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का कंडीशन ये है दैट द फील्ड शुड हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ऑल द पॉइंट्स. और नॉन यूनिफॉर्म में या तो मैग्नीट्यूड अलग होगा
या फिर डायरेक्शन अलग होगा या फिर दोनों ही अलग होंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब irrespective of what is the field, uniform non uniform जो भी होगा, what they are asking you is you have a current loop in the magnetic field, तो आपके पास ऐसा एक current loop है, you have a current loop in the magnetic field, something like this current loop, you know current carrying loop acts as a magnetic dipole, और जरूरी नहीं है कि आप सर्कुलर लूप ही दिखाओ, दिस इज द सेम केस, ये केस यहाँ पे सिर्फ मैंने मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट दिखाया है और जो लूप है वो रेक्टेंगुलर दिखाया है, आपको पता है इस पे टॉर्क एक्ट होता है, राइट? और यू आर शोइंग समथिंग लाइक दिस इज द सेम केस, क्योंकि फील्ड विल स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल, सिर्फ मैंने सर्कुलर लूप जो दिखाया है यहाँ पे उसकी जगह पे रेक्टेंगुलर डाल सकते हो, दोनों केसेस सेम है। सो व्हाट दे आर आस्किंग यू इज, एंड बाय द वे यू शुड नो करंट कैरिंग लूप एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, तो आपको पता होना चाहिए कि वन साइड ऑफ दिस लूप विल एक्ट एज साउथ पोल एंड अदर विल एक्ट एज नॉर्थ पोल, मतलब इन रियलिटी आप इसी डायग्राम को हटा के यू कैन शो अ बार मैग्नेट हियर, so you can in fact show a bar magnet that becomes very easy to understand, तो इसकी जगह पे बार मैग्नेट दिखा तो ज्यादा इजी होगा आपको समझने के लिए। now will this bar magnet मतलब this loop will experience a torque whether the field is uniform or non-uniform in all orientation, वो आपको ये पूछ रहे हैं कि फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, डजंट मैटर, लेकिन ये जो बार मैग्नेट है ये अपने सारे ओरिएंटेशन में, मतलब ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो कैसा भी हो, विल इट एक्सपीरियंस द टॉर्क ऑलवेज, तो यू शुड नो नंबर वन दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, लेट अस से इसको आप बोलते हो मोस्ट अनस्टेबल स्टेट, मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। इफ यू रिमेंबर टॉर्क का फॉर्मूला था NIAB साइन थीटा, तो डेफिनेटली जब थीटा की वैल्यू 0 या 180 होगी देयर विल बी नो टॉर्क एक्टिंग, ओके? तो थीटा 0 और थीटा 180, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थीटा 0 एंड थीटा 180? थीटा 0 मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट, थीटा 0 का मतलब ये होता है इट मींस दैट इट इज समथिंग लाइक दिस, south of the magnet is facing north of external field and north of magnet is facing south, so if theta is 0, what is sin 0? 0, so torque is 0, so will there be torque in all orientation? No, definitely no, so current carrying loop does not experience torque in all the orientations, so this is not correct. Can be in equilibrium in one orientation, can be in equilibrium, equilibrium मतलब again no torque is acting in one orientation, देखते हैं can be in equilibrium in two orientations, both equilibrium states are unstable, can be in equilibrium in two orientation, एक तो theta equal to 0 और theta equal to 180, दोनों पे torque होता है 0, right? और both stable, both states are unstable, ऐसा है क्या एक stable है एक unstable है, can be in equilibrium in two orientation, one stable while the other is unstable, option number D. So purely theory question tha, and some books have given wrong answers to this. When they say can be in equilibrium मतलब no torque is acting, so no torque is acting मतलब theta torque की value 0 मतलब sin theta should be 0 और 180 मतलब most stable and most unstable state के लिए होना चाहिए, so yes there is equilibrium in two orientation, one stable while other is unstable state, so no need to write down anything because this is oral question, so theta equal to 0 और 180 के लिए ऐसा होगा। Next question, which of the following while in motion cannot be deflected by magnetic field? So do you know force acting on a particle in magnetic field is Q V bar cross V bar, तो सिंपल है जिसके पास चार्ज नहीं उसका डिफ्लेक्शन होगा नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इट बेसिकली गिव्स सेंट्रीपिटल
force because it basically turns the particle into circular path. तो protons charge है, yes. अल्फा पार्टिकल चार्ज है. व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? हेलियम का न्यूक्लियस. वेरी गुड. अब आ जाती है बात कैथोड रेज एंड न्यूट्रॉन. सो यू डेफिनेटली नो कि ये तो नहीं है. व्हाट आर कैथोड रेज? अब बोलोगे कैथोड रेज आर फोटॉन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. हाँ, तो फिर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर चार्ज होता है क्या? होता है? नहीं. चार्ज नहीं तो डिफ्लेक्ट होंगे क्या? नहीं. यू डोंट नो व्हाट आर कैथोड रेज. कैथोड रेज आर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो आपके घर में पुराना टीवी होता था ना, वो बड़ा वाला बॉक्स, उसको सीआरटी बोलते हो. कभी सुना है सीआरटी? अभी का टीवी आप बोलते हो फ्लैट स्क्रीन, एलईडी स्क्रीन, एलसीडी पैनल, दिस पैनल, दैट पैनल. वो ओल्ड डेज में इट वाज सीआर, कैथोड रे ट्यूब टेलीविजन. उसका नाम ही था सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब. सो ओके, बिकॉज वी आर स्पीकिंग अबाउट इट, लेट मी टेल यू इंटरेस्टिंग थिंग व्हाट हैपेंस इन दैट टीवी. तो बेसिकली ऐसा एक बड़ा सा आपके पास बॉक्स होगा. सो nowadays they are extinct, you don't see them anymore, disappeared from our world to some extent. अब होता क्या है, ये जो फ्रंट स्क्रीन है जहां से आप देखते हो, इट इज बेसिकली कोटेड विथ फ्लोरोसेंट मटेरियल, एंड देन यू हैव बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड एट द बैक. यहां से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, and then this electron wherever it hits the screen, यहाँ जो मटेरियल है, मटेरियल मतलब क्या है? एटम है. और एटम आपको पता है क्या होगा उसमें? उसमें होगा न्यूक्लियस एंड देयर विल बी एनर्जी लेवल्स. So whenever these electrons hit this atom, they will basically excite these electrons to go in the upper state, and while the excitation they emit different colors. So this is how you used to get those colors. और इसलिए बोलते थे मैग्नेट मत रखो उसके बाजू में, क्योंकि मैग्नेट अगर आप रखोगे तो उसका जो कलर होता है वो एट द कॉर्नर्स यू गेट मोर कलर्ड, और सेंटर में कलर विल डिसअपीयर. अगर अभी भी होगा पुराना टीवी आपके पास, तो उसके बाजू में स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स रख के देखो, यू विल सी अरे टीवी खराब. टीवी नहीं खराब हुआ, यू आर कीपिंग मैग्नेट. मैग्नेट क्या करता है? पाथ को कर्व करेगा. जो इलेक्ट्रॉन को सीधा जाना था वो इलेक्ट्रॉन हो गया कर्व. तो जहां सेंटर में कलर प्रोड्यूस होना चाहिए था, वही कलर कहां प्रोड्यूस हो रहा है? एट द कॉर्नर्स. सो दिस इज हाउ इट यूज्ड टू वर्क. तो कैथोड रे इज व्हाट? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स हैव चार्ज, yes. So will they be deflected by field? Yes. So what will not be deflected? Neutrons. So this is also wrong, this is right. So this is very interesting. This is how it used to work. Good. Next question. An electron is traveling along x direction. So you have an electron which is traveling along x direction. तो एक काम करते हैं, मतलब वेलोसिटी जो भी होगा उसका सिर्फ x कंपोनेंट होगा. क्यों x कंपोनेंट होगा? क्योंकि वो सिर्फ x डायरेक्शन में मूव हो रहा है. तो vx I cap. It encounters a magnetic field in y direction. तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका सिर्फ y है, मतलब by j cap. Okay. Its subsequent motion will be. इलेक्ट्रॉन था, मैं डायरेक्शन ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे. ये है x एक्सिस, ये है यहाँ पे y एक्सिस, you have a z axis over here. So let us take z, let us take x and let us take y. x axis के along क्या है? पार्टिकल का मोशन है. So particle is moving, velocity का डायरेक्शन है x. So this is vx. Okay. Then magnetic field is in the direction of y axis. So this is by j cap, right? और ये है vx I cap. Now they're asking you its subsequent motion will be a straight line. हो ही नहीं सकता. straight line कैसे होगा? You know, charge particle when moving in magnetic field क्या करेगा? कर्व कर देगा, right? तो it cannot move in a straight line, ये तो पक्का है. So ये नहीं हो सकता. A circle in xz plane, a circle in yz plane, a circle in xy plane. This is important now. Easy and important. So do you remember formula for force? अभी बताया था मैंने, Q V bar cross B bar.
सो Q तो Q है, V is Vx I cap and this is By J cap और यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए, दिस इज क्रॉस By J cap, तो दिस इज Q। अभी याद रखना, आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिक रूल्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। जब भी आप A बार क्रॉस B बार करते हो, अगर A के साथ कोई कांस्टेंट है, लेट अस से A, B के साथ कोई कांस्टेंट स्केलर कांस्टेंट है B, तो इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। यू कैन राइट डाउन A आउटसाइड A बार क्रॉस B बार, you can write down both outside AB A bar cross B bar, you can write down B outside A bar cross B bar, you can write both of this with one of them is okay, you can write down also like this, it is still okay, you can write down B A bar cross A B bar is also okay, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। A into B into C into D is AC into BD, it is AD into BC। तो मल्टीप्लीकेशन में डजंट मैटर, ऑर्डर डजंट मैटर, आपको जैसा लिखना हो वैसा लिखो, आप ऐसा लिखो चलेगा, आप ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, आप ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, डजंट मैटर, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इज मल्टीप्लीकेशन। देन व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, बिकॉज यू सी ये Vx और By क्या है, ये जस्ट मैग्नीट्यूड्स है, मतलब ये स्केलर वैल्यूज है, नंबर है ये, जिसके साथ डायरेक्शन नहीं, मतलब वो क्या, नंबर। तो नंबर्स है तो नंबर्स को मैं बाहर लिख देता हूँ, Vx By I क्रॉस J, राइट, I क्रॉस J is, हैव यू एवर यूज साइकिल, तो पता होना चाहिए I कैप क्रॉस J कैप इक्वल टू K कैप। फिर साइकिल में I की जगह पे J सब्स्टिट्यूट करो, J की जगह पे K सब्स्टिट्यूट करो एंड K की जगह पे I। तो I की जगह पे J, J की जगह पे K, K की जगह पे I। वापस से एक बार K, I एंड J। तो ये रूल्स आते हैं। अगर आपको J कैप क्रॉस I कैप लिखना हो तो माइनस K कैप होगा, K कैप क्रॉस J कैप वो माइनस I कैप होगा। तो व्हाट इज दिस, K कैप। तो K कैप मतलब व्हाट इज योर कंक्लूजन, व्हाट डू यू कंक्लूड। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन थोड़ा मैथमेटिकल है। पहले तो ये बताओ पक्का सर्कल होगा कि नहीं, सर्कल होगा श्योर। अरे मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये तो फिक्स है। अब डू यू नो कि किसी भी एरिया का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, हाउ डू यू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ एरिया, बाय ड्राइंग नॉर्मल टू दैट एरिया। अगर मेरे पास ऐसा सर्कल है, एक्स जेड प्लेन में सर्कल है, तो मुझे इसका डायरेक्शन चाहिए, तो इसको नॉर्मल मतलब डायरेक्शन कहां जाएगा, जे कैप मतलब वाई। इज दिस क्लियर। डायरेक्शन कैसे निकालते हो एरिया का, बाय ड्राइंग नॉर्मल टू द एरिया। अगर सर्कल एक्स जेड प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है, तो उसका नॉर्मल कहां जाएगा, अलोंग वाई। अगर सर्कल एक्स वाई प्लेन में है तो उसका नॉर्मल कहां जाएगा, जेड में। तो के कैप क्या है, मतलब डायरेक्शन किसका है, नॉर्मल का। तो अगर के कैप मतलब जेड डायरेक्शन में नॉर्मल है तो फिर प्लेन कहां हुआ उसका, एक्स वाई है क्या, अ सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन। कहां पे एक्स वाई, ऑप्शन नंबर डी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि V का सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, दैट इज x कंपोनेंट। उसके बाद B का भी एक ही कंपोनेंट है, दैट इज y कंपोनेंट विच इज j कैप। फिर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए F इक्वल टू Q V बार क्रॉस B बार। तो Vx I कैप क्रॉस By J कैप, Vx By बीइंग स्केलर उसको बाहर लिख दिया, अंदर बचा I कैप क्रॉस J कैप, बट I कैप क्रॉस J कैप इज K कैप, क्योंकि यहाँ पे फाइनली K कैप आया। इसका मतलब ये सर्कल का नॉर्मल का डायरेक्शन है। ये नॉर्मल अगर आया जेड एक्सिस में तो सर्कल कहां होगा, एक्स वाई प्लेन में। तो ऑप्शन नंबर डी, डन। So that's it for today. We will stop at this question.